तो क्या समझते हैं आप बंध से? व्हाट इज द मीनिंग? लॉक। Lock means what? Lock. Which type of lock? Anyone? क्लास में हैं आप लोग? यस मैम। यस। तो बताइए जरा बंध क्या होते हैं? आपने कहीं पढ़े हैं बंध? बांधना है, जो जहाँ है उसको वहीं पर ही रोक देना। मैम किसी इम्पोर्टेंट चीज को रोकना के लिए बोल सकते हैं बंद। हाँ, बंध लगाना है ना। बंध लगाना मतलब कि बांधना, लॉक करना, उसको चैनलाइज करना, आप ये कह सकते हो कि जैसे कि एक सर्किट होता है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो उस वो यदि कहीं से खुला हुआ है तो करंट जो है वो सर्किट में पास नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि कनेक्शन प्रॉपर है तो उस केस में जो है पूरा का पूरा जो हमारा सर्किट है, जिस भी चीज का सर्किट है, जिस भी काम करने के लिए जो भी हमने बनाया है सर्किट, तो वो पूरी तरह से फंक्शनिंग करेगा, है ना। एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी। ठीक है। तो यदि हम उस सर्किट को अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं और कनेक्शन प्रॉपर है, तो करंट जो है वो प्रॉपरली फ्लो होगा। और जिस भी पर्पस के लिए वो सर्किट है, जैसे कि आपको लाइट ऑन करना है तो उसके लिए भी एक सर्किट है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उसको ऑफ करते हैं, सर्किट जो है वो खुल जाता है, एक तरह से ब्रेक हो जाता है और लाइट जो है वो बंद हो जाती है। तो उसी तरह से हमारी जो बॉडी है, ये भी, इसमें भी एक तरह का करंट है, एक तरह की एनर्जी फ्लो होती है, एक तरह का प्राण शक्ति जो है वो फ्लो होती है। तो जब हम पर्टिकुलर बंध लगाते हैं तो उस लॉक से चैनलाइज होती है एनर्जी पर्टिकुलर पाथ में। ठीक है। तो वी कैन से दैट literal meaning of bandha is just to bind, just to hold, just to contract, or just to complete the, just to hold the captive. So, bandha is generalized sense can be considered as lock. So, in yogic terminology, the bandhas are considered as, psychic lock, because it is related to our body and our mental state, used to raise the level of our prana shakti, all right, our energy. So bandha locks the prana, or we can say you might have learned all the types of prana and sub prana. So all this prana in particular area, they are allowed to flow in a particular channel. So it redirects its flow for the purpose of the final aim of yoga, that is the spiritual awakening. All right.
So in Hatha Yogic text, bandha signifies the muscular locks, which directs the movement of this prana shakti or the energy to Sushumna Nadi. So in bandha, the prana is accumulated in a particular center, through the contraction of the muscles and organs in that particular area of our physical body, and then it is, directed, or we can say channelized to the Sushumna Nadi. So basically, how many bandhas you have learned? How many bandhas are there? कितने बंध हैं? 3. ये मैम बेसिकली Yes, what are those? मूलबंध जलंधर उद्यान Udyana. And when all three done together, it is महाबंध Mahabandha. All right. So three bandhas, and if they all three we do at simultaneously at one time, then it is called Mahabandha. So when you are, perfectly, you are perfect in doing all the three bandhas individually, then only it is recommended that you practice Mahabandha. So first we learn Jalandhar Bandha. Jalandhar Bandha is also called chin lock or throat lock, because jala means throat. Okay, jalam is actually water, and Jalandhar, dhara means supporting, or you can say a tubular vessel in a body. So Jalandhar Bandha is performed by contracting the throat and bringing the chin to the chest while retaining the breath. And it is said that this throat lock restricts the flow of nectar in the throat and going down in the body to the Agni Chakra, or you can say the Manipuri Chakra, where the Jathagranari is there. So according to Hat Pradipika, this Jalandhar Bandh is said to awaken the Kundalini Shakti. So it is also considered very essential from pranayama, because we study pranayama, and there are many practices in pranayama in which we do Jalandhar Bandha, especially when we do Kumbhaka. So it prevents the air from entering into auditory tubes and causing, which uh, relieves from many disorders relating to your throat, your ear. So how you do this Jalandhar बंद जो हम अभी पढ़ रहे हैं, बंद का मतलब है कि लॉक करना। कोई भी जो हमारे शरीर में पूरी प्राण शक्ति का फ्लो है, एनर्जी का फ्लो है, तो हम उसको चैनलाइज करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि वहां पर जो चक्र है, या जो वहां पर चैनल है, जो यहाँ वहां पर एक तरह से कहना चाहिए कि सेंटर है एनर्जी का, वो एक्टिवेट करने के लिए हम ये बंद लगाते हैं। तो बंद जो है तीन तरह के हैं, आपने पढ़े हैं, जालंधर, उद्यान और मूल बंद। पहले हम जालंधर बंद पढ़ रहे हैं। जल का मतलब होता है जल या थ्रोट, है ना। तो वहां पे यदि हम बंद लगाते हैं अपने थ्रोट सेक्शन में, उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके, और जब हम एयर का फ्लो ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर ये जालंधर बंद लगता है। और इसको किस तरह से आप प्रॉपरली, किस तरह से इसका प्रोसीजर है, तो फर्स्ट यू हैव टू सिट कंफर्टेबली इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, whatever. And then you have to place your both hands or palms on the knees in Jnana Mudra, and or you can hold the knees, because you have to sometimes, it is recommended that you just, uh, just bend little your body forward, and then do this bandha. So either you hold your knees tightly, or you can make a Jnana Mudra
And you have to allow your whole body to, relax. Neck and back should be erect in initial position, but the body should be in a relaxed position, not very, stretched position. And you have to inhale slowly and deeply and retain the breath, and then lower the chin down in front and set it against the your this notch, or sternum muscles, initial the starting of your sternum bone, and then stretch the sides of your neck and move the shoulder blade onto the body, and you have to place a neck forward and downward. All right, now lift the chest little to touch the down, your chin, and always you have to close your eyes, whether you are doing pranayama or bandha or mudra. So the mind should remain aware, throughout the practice inwardly. So, and hold, you have to hold as long as possible. And when you feel like releasing the bandh, you have to slowly raise your head up and then release the bandha, and uh, exhale and then inhale. All right. So likewise, you have to perform this practice. किस तरह से करना है? किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में आपको बैठ जाना है, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बनानी है आपको, और आईज को क्लोज रखना है, और पूरी अवेयरनेस के साथ में ब्रीथ इन करना है आपको स्लोली और डीपली। और उसके बाद में आपको जो है चिन को डाउन करना है, अपनी जो बॉडी है, आपकी चिन है, वो चेस्ट को टच करे, थोड़ा सा बॉडी को फॉरवर्ड लाना है, और पूरी तरह से लॉक लगा लेना है यहाँ पे नेक पे, और होल्ड करना है। उसके बाद में जब तक आप कंफर्टेबल रह सकते हैं इस पोजीशन में रहेंगे, और उसके बाद में धीरे से आपको जब रिलीज करना है बंद, तो अपने चिन को अप करेंगे और बॉडी को थोड़ा स्ट्रेट करके और रिलीज करेंगे बंद को, और एक्सेल कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये बंद की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो होल्डिंग पावर जो है वो आपका धीरे धीरे बढ़ जाता है। जैसे इनिशियल स्टेज में 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, तो इट विल बी से अप टू 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड, लोग 1 मिनट तक भी होल्ड कर लेते हैं। तो जितना होल्डिंग आपका बढ़ेगा, उतना ही आपका जो लॉक है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब इसमें जो सबसे मेन बेनिफिट है, द मोस्ट like beneficial with the Jalandhar birth is for the functioning of your thyroid gland and parathyroid gland, because these are the glands which governs your growth hormone and many more hormone for the metabolism, for your functioning of your whole body, growth of the muscle and bone. So, and also it is said in one of the texts that 16 adhara of in the body are, balanced by you doing this practice. So all 16 adhars are, controlled by this Jalandhar Bandha. So the reason may be that the neck is an important part of our body, right? So nadis from all over the part of body, it enters the brain through this throat, the spine, the end of our spine where all the nerves are, joined together at that point, and then it spreads all over your brain. So if throat is the point where all meeting place of all the nerves is there from spine to your brain. So, or on other words, you can say that throat is, connected with the whole body. All right. The head, your brain, and your rest of the body both are connected through this portion, throat. So, Jalandhar birth exerts pressure on the nadis of throat and thereby affects the functioning of whole body. So, if there is any, excess mucus in throat,
or if somebody is suffering from tonsillitis. So this type of disease or problems can be removed or destroyed by this practice, जालंधर बंधन. तो जो जालंधर बंध है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि जो पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड्स हैं उनको रेगुलेट करता है, और ये जो ग्लैंड है ये आपका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, फंक्शनिंग जो बाकी ग्लैंड्स की है उनको रेगुलेट करती है. तो इस तरह से और जो आपके 16 आधार हैं, आपने पढ़े होंगे टेक्स्ट में कि 16 आधार को दृढ़ करता है. 16 आधार से मतलब है आपकी जो बॉडी में जो फंक्शनिंग के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं, तो वहां से जो नर्व्स जाती हैं, क्योंकि बेसिकली आप जो भी काम करते हो या सेंस करते हो, सेंसरी ऑर्गन्स और वर्किंग ऑर्गन, दो तरह के ऑर्गन्स हैं हमारे पास में, और दो तरह की नर्व्स हैं हमारे पास में. तो जो नर्व्स, एक तो सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि आप देखते हो, सुनते हो, खाते हो, पीते हो, जो भी है उसको ब्रेन तक पहुंचाती है, और फिर आपका ब्रेन एनालाइज करता है कि वो चीज क्या है. जैसे आप सुन रहे हो तो क्या सुन रहे हो, किसकी आवाज है, खा रहे हो तो क्या टेस्ट है उसका, है ना, देख रहे हो तो क्या चीज है, क्या कलर है, क्या शेप है. तो ये सब की प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद में आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि हाँ ये चीज है. और उसी तरह से जो हमारे वर्किंग ऑर्गन्स हैं उसमें जो नर्व्स हैं, वो ब्रेन के थ्रू वहाँ सिग्नल भेजती है कि अब आपको, आपके हाथ को उठना है, आपको चलना है तो ऐसे चलना है, सामने कुछ आ गया तो आपको उससे बचना है तो ऐसे बचना है. तो ये सारी प्रोसेसिंग के लिए नर्व्स जो हैं वो सब जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके ब्रेन को देती है. तो जो नेक रीजन है ये जॉइनिंग पॉइंट है और नर्व्स का, और ये नर्व्स जो है वो ब्रेन तक कनेक्ट होती हैं थ्रू थ्रोट. तो इसलिए जो 16 आधार हैं वो दृढ़ होते हैं आपकी बॉडी के. तो इसलिए जालंधर बंद को एक इम्पोर्टेंट बंद, एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस माना जाता है. और यदि किसी को टॉन्सिलाइटिस की, जो कि क्योंकि वो भी थ्रोट में है टॉन्सिलाइटिस आपका, और थ्रोट में यदि म्यूकस का बहुत ज्यादा कंजेशन है, तो उस जालंधर बंद लगाने से ये सब चीजें, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये दूर हो जाती हैं. अब यदि किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या वर्टिगो है या हाई बीपी है, तो उसको बंद नहीं लगाना. सेकेंड वन इज उद्यान बंद. यहाँ उद्यान लिखा है बट इट इज उद्यान बंद. ओ ड ड ड ड वर्ड है, इसके लिए डी वर्ड है, बोल रहे हैं द, डी एच नहीं है, डी डी है. उद्यान बंद. उद्यान, उड़, उड़ी मीन्स उड़ का मतलब है फ्लाई करना. इन हिंदी उड़ी मीन्स टू फ्लाई अप, टू राइज अप. So through this bandha, prana like a bird flies up, through the sushumna. So that's why this the name comes, this Uddiyana Bandh, or you can say abdominal lock. So in this bandha, abdominal organs are pulled inside, and to up in upward position. You have to pull inside and also upward, all right, which creates an upward flow of prana. All right, the flow of prana will be in the upward direction. So Udyan Bandha is said to be the most powerful of all the bandhas because it reverses the downward flow of apana and pulls it upwards to meet at area of samana. Samana vayu कहाँ पर होती है? समान वायु, which is the area of saman prana. नाभि Anyone? पेट में, Mm-hmm. नाभि के पास में. नाभि के पास में. और कोई कुछ कहना चाहेगा? ऑल राइट.
So it pulls it upward, to meet the area of samana, which is supposed to be related to this nadi, सुषुम्ना नाड़ी. So इस उद्यान बंद में हम क्या करते हैं? उद्यान का मतलब है थोड़ा हल्का होके उड़ना, लाइट हो जाना, है ना, राइज अप होना, उड़ जाना, उड़ने का मतलब बर्ड जैसे फ्लाई करता है उसी तरह से. तो हमारा जो बर्ड है यहाँ पर वो है प्राणा. प्राणा को हमको जो है ऊपर की तरफ हल्के से, मतलब एक तरह से लाइटली वो स्लोली और स्मूथली वो फ्लो करे ऊपर सुषुम्ना में. ये हमको चाहिए इस प्रैक्टिस से. तो इसलिए क्योंकि उद्यान बंद जो है वो नेवल रीजन में वर्क करता है, एब्डोमिनल रीजन में वर्क करता है. एब्डोमिनल की जो सारी मसल्स हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, उसको हम पूरी तरह से नीचे पीछे की तरफ यानी इनवर्ड और थोड़ा ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं इसमें. तो इसीलिए इसको बहुत पावरफुल प्रैक्टिस बोला गया है कि जो अपान की जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ, प्राण और अपान का एक तरह से मिलन होता है इसमें समान रीजन में, और ये जो है सुषुम्ना में फ्लो करते हैं. तो बाय ड्राइंग अपना अपवर्ड विद इन शॉर्ट टाइम, दिस उद्यान बंध ब्रिंग्स, क्योंकि यदि आपका सुषुम्ना में फ्लो है प्राण वायु का, प्राण का, प्राण शक्ति का, तो इससे किस में हेल्प मिलती है? व्हाट यू वांट फ्रॉम द प्रैक्टिस, फ्रॉम द साधना? क्या चाहते हो आप साधना से? योग साधना करते हैं हम, बहुत सारे प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, बंद लगाते हैं, है ना, मुद्राएं लगाते हैं. तो पर्पस क्या होता है? आवाज सुषुम्ना एक्टिवेट करना. क्या कहा आपने? सुनाई नहीं दिया मुझे. मैम सुषुम्ना एक्टिवेट करना. हाँ, सुषुम्ना एक्टिवेट करना, प्राण का फ्लो उसमें होना. इससे हम क्यों चाहते हैं हम ऐसा? इट इज फॉर अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी. ओके, कुंडलिनी जागरण जिसे हम बोलते हैं ना, उसके लिए ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं, व्हेन दिस हैज बीन मास्टर्ड, then this awakening of kundalini happens, and then the liberation follows naturally. That's what you want, liberation, मुक्ति, मोक्ष. यही चीजें जो है वो योग साधना का जो है वो एम है. So what is the procedure? राजयोग में राजयोग इसी को कहते हैं ना मैम? हाँ, राजयोग भी कह सकते हैं. हठ योग जो है वो इसीलिए है ना कि आपको राजयोग की प्राप्ति जो है वो आप करें. ठीक है. तो इसका प्रोसीजर क्या है? यू हैव टू सिट कंफर्टेबली अगेन इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर, and you have to place your both hands or palms on the knee. इसमें जनरली कोई मुद्रा ऐसे लगाना नहीं है. जस्ट यू हैव टू होल्ड योर नीज, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी को आपको आगे की तरफ इसमें फॉरवर्ड लाना होता है. Now what you have to do, you have to inhale first completely, and then you have to exhale completely, through your mouth or nostril or whatever. Complete exhalation is one of the criteria for this practice. And then you have to hold this breath out and perform this Udyan Bandha. And after exhaling completely, you have to pull in all your abdominal region muscles or organs inward, and try to push upward also. Inside it, just try to touch towards your spine. So and you have to retain the breath outside, all right, as long as you feel comfortable. Now Udyan Bandh, with Udyan Bandh, Jalandhar Bandh people practice also. So you have to bend your neck region, and then when you retain as per your capability,
And if you feel, slightly to release this Uddiyana Bandha, you have to just raise your head up and release this Uddiyana Bandha, and you have to inhale slowly and release the abdominal muscles. Return to the normal position. So you can do 3 rounds or 5 rounds as you want to practice. तो इस उद्यान वन में हमने क्या करना है, वही प्रोसीजर सेम है. आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है और उसके बाद में आपको अपने जो पाम से अपने जो नीज हैं इसको हथेलियों से अपने घुटनों को अच्छी तरह से होल्ड करना है, इनहेल करना है अच्छे से, और फिर कंप्लीटली एक्सहेल करने के बाद में चिन को लॉक करना है और पूरी एब्डोमिनल मसल्स को पीछे की तरफ और थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना है जितना हो सके. तो सारे ऑर्गन्स और सारी मसल्स को एक तरह से आपको खींच के स्पाइन की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है और फिर यही होल्ड करना है जितना आप कर सकें. और जब आपको लगे कि इनफ है इतना, तो आप धीरे धीरे जो है हेड को अप करेंगे और धीरे धीरे सांस को लेंगे और अपने जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको रिलीज करेंगे और थोड़ी देर जो है वो कंफर्टेबली बैठेंगे और फिर आप दोबारा तिबारा जो है इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं. तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं बहुत सारे टेक्स्ट में बताए गए हैं. Like in Hatha Yoga Pradipika, it is said that death can be, averted after 6 months of practice Uddiyana Bandha. And this, again, it changes the course of downward moving Apan Vayu and pulls it upward. And then it is combined with Jalandhar Bandha. Then prana is locked in navel center. So in navel center, prana and apana are both united with samana, and then union of these two opposite energies, apana and prana, in navel region, that results into great potential force which travels upward through this nadi. And then this force is powered by Udan Vayu, because Udan prana will flow upward and it is taken up to the higher center. So this Uddiyana Bandha, it controls all your abdominal region, muscles and organs. So your blood circulation in the trunk region, whole trunk region, will get improved, strengthen the all internal organs. All right, and of course the toning and strengthening of all the muscles and organs will take place. So this relieves you from the any disorders which related to your digestive system. So or somewhat the lower abdominal region also it is affected. तो इस तरह से जो उद्यान बंध है ये प्राण और अपान वायु के मिलन के लिए और उनका जो फ्लो है वो सेंटर नाड़ी में करने के लिए, सुषुम्ना में करने के लिए, ये भी बहुत हेल्पफुल है. और पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है ट्रंक रीजन का, आपका जो मेन बॉडी है, बीच की जो बॉडी है, उसमें इम्प्रूव होता है. सारे ऑर्गन्स और मसल्स टोन अप होते हैं और जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हैं या डायबिटीज जो है उनके लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है. तो ये हमारा हो गया. और लेकिन प्रिकॉशंस ये हैं इसमें, ये सेम प्रिकॉशंस की एब्डोमिनल रीजन इसमें इन्वॉल्व है, तो कोई भी सर्जरी यदि आपको इस पोर्शन में हुई है या इंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, कोई दिक्कत है ना, अल्सर्स हैं उसमें, या हार्ट रिलेटेड इशू है जैसे हाई बीपी या इसमें, तो उसमें हमने बंद को पूरी तरह से मना किया हुआ है कि डोंट डू एनी बंदा if you have high blood pressure or any heart related issue, heart disease कोई भी हो, तो उसको उसमें आपको ये सब चीजें नहीं करनी. अब है मूल बंध. मूल बंध जो है वो
इसको हम कहते हैं what we call it Mulabandha anal lock or perineal contraction, you can say. So Mulabandha is applied by contracting the external and internal anal sphincters muscles, and it is retained as long as one feels comfortable. So this lock can be simultaneously applied with abdominal lock, because somewhat your abdominal muscles and organs also get affected when you do Mool Bandha. So in this bandha, the region between the anus and your genitals is to be contracted, and they are raised up, pulled up towards the navel region. So it takes place in the center of your body, all right? So in the area, near your Muladhara chakra. So it activates your Muladhara chakra and it locks the area near the that chakra, and it prevents the apan vayu, from escaping downwards below this chakra, and therefore it is known as Mula Bandha. It restricts that flow of apana downwards. So the same technique, the same, you have to sit comfortably, place both hands on your knees comfortably, and then you have to close your eyes, relax your whole body, keep your spine straight, and you have to concentrate, on the perineal or, vaginal muscles for a few minutes first, and then you have to contract these muscles for a few seconds and release gradually. Generally, after that, you have to breathe normal. And you can repeat it 5 times, 10 times, or more than that. So this is how this is done. First, actually, Jalandhar Bandh also, can be done with this practice, because you have to hold the breath. And then, or this way, this practice can be, you can practice this Mula Bandha. And if you combine this, all three bandhas together, first you have to inhale completely, then exhale completely, and then first Jalandhar Bandh, then Udyan Bandh, then Mula Bandha, and then hold these three bandha together, all right, for a few seconds or few, few, not minutes, but like 10 to 20 seconds. And then you have to first release your Mula Bandha, then, Mula Bandha, Udyana Bandha, and then Jalandhar Bandha. And then you have to inhale. So that way, this is a practice of Mahabandha. Now, some text said, he says that, if you perform these Mula Bandha, then, Prana, Apana, and, Nadavindu, they are united, and the total perfection is attained. So, old person may attain, youthfulness, because your muscles are more flexible, and you have attained the control over all the senses. So that way, this regular practice or the correct practice of Mula Bandha, the mind becomes, more alert, and your sleep will be decreases. So many physical, mental, and spiritual benefits are there if you perform this practice, because it stimulates your pelvic nerves and tones your genital and excretory system. So as a result, your control over your urine and stool will get improved as you age older. So it helps to relieve, constipation and piles, and is beneficial for anal, fissures and ulcers and prostate. So nervous system also get affected, your blood circulation, your brain functioning, they all are greatly benefited if you practice these bandhas.
So all this about the bandha. And now we have, some mudras. Now, what it means? Mudra means what? Mudra. मुद्रा में उसका कोई आकार, कोई भाव, भंगिमा। आपकी आवाज, अच्छा ये मैंने हिंदी में नहीं बताया आपको। ये जो मूल बंध है, इसको भी हम उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि आप किसी भी मेडिटेटिव आसन में, ध्यानात्मक आसन में बैठ के अपने नीज को होल्ड करेंगे और उसके बाद में आप इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे और अपने जो पेरिनियम पोर्शन है, नीचे का जो आपका कोर पोर्शन है, इसको आपको ऊपर की तरफ खींचना है। तो इसमें भी आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि अपान वायु जो है वो बाहर की तरफ ना जाए और उसको आपको बाहर जाने से रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। तो इस तरह से जो है वो जो आपका एनल रीजन है, उसको, उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ आपको खींचने की कोशिश करना है। और साथ में जो है, यदि आप उद्यान बंद भी लगाते हैं और जालंधर बंद भी लगाते हैं, तो ये तीनों मिलकर के बन जाता है महाबंधा। तो एक तरह से जब आप मूल बंद लगाते हैं तो जो आपका एब्डोमिनल मसल्स हैं ये भी खिंचती हैं, और यदि थोड़ा और एफर्ट लगाते हैं तो ये दोनों बंद एक साथ भी लगाते हैं, और क्योंकि आपको ब्रीथ होल्ड करनी है तो जालंधर बंद भी लगाते हैं। तो इस तरह से तीनों बंद यदि लग जाते हैं तो उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके। आपके जो सेंसरी नर्व्स हैं और आपकी जो फंक्शनिंग है, बॉडी फंक्शनिंग है, वो बहुत इम्प्रूव होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि जो एज को आप होल्ड कर सकते हो ना, यूथफुलनेस जो है वो आप अपनी बरकरार रख सकते हो इस बंद की प्रैक्टिस से। तो आपका जो माइंड है वो भी बहुत अलर्ट होता है इससे, और आपका जो स्लीप है, यदि बहुत ज्यादा सोने की आदत है तो वो भी जो है वो कम होती है। और पेल्विक नर्व्स जो हैं उनकी टोनिंग बहुत अच्छे से होती है। जो आपका जेनाइटल रीजन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है अ, वो उस पे कंट्रोल अच्छा आता है। तो जो यूरिन और स्टूल का जो कंट्रोल है, जो एज में, ज्यादा एज में जो है उस पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो चीज पे, वो प्रॉब्लम्स जो है वो आपको नहीं होती है। जैसे जैसे एज होती है तो हमारा ये जो सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका नर्वस सिस्टम हो, चाहे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ये सब अफेक्ट होते हैं। लेकिन यदि आप ये बंध की प्रैक्टिस रेगुलर बेस पे करते हैं और अच्छे से करते हैं, पूरे प्रोसीजर के साथ करते हैं, और होल्डिंग पावर आपका इम्प्रूव्ड है, आप अच्छी तरह से करते हैं, तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो आपको नहीं आती हैं। तो ये और जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा, तो आपके जो सारे सिस्टम्स जो भी आपने पढ़े हैं बायो की क्लास में, वो एनाटॉमी की क्लास में, उनका जो कहना चाहिए कि वर्किंग जो है वो बहुत अच्छे से रहती है। मतलब आप काफी टाइम तक अपने सिस्टम को मजबूत रख सकते हो, उसको बीमारियों से बचा सकते हो, इंक्लूडिंग योर ब्रेन। ऑलराइट, तो अब हम पढ़ते हैं मुद्रा। तो मुद्रा की मैं पूछ रही थी कि मुद्रा से आप क्या समझते हो, व्हाट डज इट मीन? बताइए जल्दी, हम कंप्लीट करेंगे इसको आज। मैम सुना बहुत है लेकिन पता नहीं है इसके बारे में। पता नहीं है, मुद्रा भी एक तरह से आपका एक बॉडी पोस्चर ही है। डिपेंड करता है कि वो आपने हाथों की उंगलियों से लगाया है सिर्फ, तो वो एक मुद्रा होती है, या फिर आपने अपनी बॉडी को भी उसमें इंक्लूड किया है, तो एक बॉडी पोस्चर
particular body posture with some hand movements, और hand movement नहीं कहूँगी, फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं पर्टिकुलर, तो वो भी एक तरह से एक चैनलाइज करता है आपके प्राण शक्ति के फ्लो को, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस फ्लो को डाला जाता है अलग अलग मुद्राओं के हेल्प से. So, it is necessary to know about what the mudra is, because you have to follow various practices, not only asana, but in the pranayam also, you have to make some mudras. So, just to make sure that the energy or the prana shakti will flow in a particular direction through a particular channel. तो उस एनर्जी को, उस प्राण शक्ति को एक चैनल, एक पर्टिकुलर चैनल में फ्लो करने के लिए अलग अलग मुद्राएं जो है बनाई जाती हैं. अब ये मुद्राएं जो है वो आपके सिर्फ फिंगर से भी हो सकती हैं, और आपके जो है वो बॉडी पोस्चर भी, इसमें बॉडी का जो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी इंक्लूड जो है वो इसमें होते हैं. तो जो फर्स्ट मुद्रा है हमारी वो है यहाँ पर योग मुद्रा. 1 minute, ओके. Yeah. Okay. Yeah, sure. Yeah. तो यहाँ पे हम मुद्रा पढ़ रहे हैं ना, तो मुद्रा में भी वही चीजें हैं. एक जो है आपका फिंगर का पर्टिकुलर टच करने से चैनलाइज करना, या फिर आप उसमें अपने बॉडी के कुछ पोस्चर को एक पर्टिकुलर एंगल पे या पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप होल्ड करते हो ब्रीदिंग के साथ में, तो आपकी जो प्राण शक्ति है या आपका जो एनर्जी फ्लो है वो चैनलाइज होता है. तो सबसे पहला जो है आपका वो है योग मुद्रा. अब योग मुद्रा में जो है ये भी बहुत अच्छा मुद्रा या प्रैक्टिस मानी जाती है. So what you have to do again, you have to sit either in Padmasana, or here it is in Vajrasana. Any of the asana you can sit, and you have to hold your one wrist behind back and close your eyes and relax the whole body and bring the awareness to your Mooladhara chakra, right? Slightly Mool Bandha may be also performed in this practice. So you have to inhale first slowly and then feel the breath gradually, rising from your Mool Bandha to your Agya chakra, from downward to upward. And you have to retain the breath for a few seconds and concentrate on your Agya chakra, and you have to exhale while bending forward from your hips. All right, now synchronize the movement of your body with your breath, so that your forehead touches the floor in Yoga Mudra Asana, because your air is completely expelled from your lungs, from your body. And when you descend, then concentrate on your chakra, Agya chakra, like from Mooladhara to Agya chakra, like that. So and after holding for some time, you have to just inhale and raise your trunk, your upper body up, and then in vertical position. Then you can open your eyes, be aware of your breath, moving upward from Mooladhara to Agya chakra. तो इस तरह से इस प्रैक्टिस को हम कैसे करेंगे, या तो वज्रासन में बैठ जाएंगे या फिर आप पद्मासन में बैठेंगे. अपने दोनों हाथों को, दोनों आर्म्स को पीछे ले जाएंगे, या तो आप राइट से लेफ्ट रिस्ट को पकड़ लीजिए या लेफ्ट से राइट रिस्ट को पकड़ लीजिए. स्ट्रेच करेंगे बॉडी को अच्छी तरह से, चेस्ट को अप करेंगे, एब्डोमेन को पूरी तरह से खींचेंगे अंदर की तरफ,
इनहेल करेंगे पूरा अच्छी तरह से और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे बॉडी को नीचे लेके जाना है। जब और ये जो प्रैक्टिस है ये क्योंकि आसन नहीं है, ये मुद्रा है, तो यू हैव टू कीप योर आईज क्लोज, फुल अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ। और ब्रेथ को आपको कैसे फील करना है कि वो मूलाधार से जो आपका प्राण शक्ति है वो आज्ञा चक्र की तरफ आ रही है, ये मन में फील करते हुए उस पोर्शन पे, उस जगह पे अवेयरनेस रखते हुए आपको एक्सेल करते हुए बेंड करना है। थोड़ी देर उस पोस्चर में होल्ड करना है। यदि आप ब्रेथ को होल्ड कर सकते हो तो करना है, नहीं तो आप थोड़ा सा ब्रीथ कर सकते हो। और फिर जब आप, वैसे तो होल्डिंग के साथ में किया जाता है क्योंकि ये आसन नहीं है, ये मुद्रा है, तो थोड़ा सा ब्रेथ पे थोड़ा कंट्रोल होना जरूरी है। और फिर धीरे से आप इनहेल करेंगे और धीरे धीरे जो है वो वापस ऊपर की तरफ आएंगे, अपने एब्डोमिनल रीजन को रिलीज करेंगे और अपने ब्रेथ पे पूरी तरह अवेयरनेस रखते हुए आप आंखों को खोल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी जो योग मुद्रा है। और जितना कोशिश ये करना चाहिए कि आपका जो रेस्पिरेशन है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो बहुत स्लो हो, है ना, विदाउट एनी एफर्ट, बहुत स्लोली और स्मूथली ये प्रैक्टिसेस जो है वो आपको करनी है। So you have to like synchronize the movement of your body with the your breathing practice, your respiration, inhalation and exhalation. Now, if somebody is suffering from sciatica, or high BP, or this pelvic region, any disorders related to pelvic region, pelvic inflammatory diseases like that. So, or abdominal disease or any surgery. So, you have to avoid this practice. And again, this practice involves your abdominal region. So, it massages all the organs, and it is a contribution to your good health because it is related to your digestive system. So that way, it is very good practice. And Yog Mudra is it unites the individual consciousness. It is said that to the supreme consciousness because we pay our awareness to Mooladhara Chakra, to Agya Chakra. And so that's why it is said that it is a good practice, for the union of individual soul to the supreme soul. So, or you can say the inward nature to, the outer nature, the space, the universe. So, दिस इज अगेन अ वेरी गुड प्रैक्टिस। योग मुद्रा जो है इसी तरह से हम करेंगे, लेकिन कोई भी डिसीज है एब्डोमिनल रीजन से रिलेटेड तो उस केस में हम ये प्रैक्टिस को अवॉइड करेंगे। ये आपके 3-4 बचे हुए हैं। चलिए, नेक्स्ट है महामुद्रा। ना महामुद्रा आपने पढ़ा होगा, ये मुद्राएं जो है टेक्स्ट में, जब आपने, मुझे लगता है, हठ प्रदीपिका घेरन संहिता पढ़ी होगी, तब ये सब मुद्राएं आपने स्टडी किया होगा। तो महामुद्रा जैसे कि प्रैक्टिस में देख रहे हो पिक्चर में, तो किस तरह से इसको करना है। तो महामुद्रा is again a very good practice. You have to sit in any asana. Then you have to bend your one of the leg, and if your right leg is outstretched, so you have to bend your left leg, and keep your back straight and relax your whole body. And in this Mahamudra, the Khichdi mudra is also practiced. You have to roll your tongue and put to the palate, at the back of your palate, and you have to take the deep breath in and exhale, and then bend forward and clasp your right big toe with your both hands, and keep your head erect and back straight, and slowly inhale and
tilting your head slightly back. So you have to perform this practice with Shambhavi Mudra also. And then Moola Bandha is also practiced with this Mahamudra. And you have to hold your breath inside and rotate the awareness from your eyebrow center to your throat, to your perineum, and mentally repeat, this Agya Chakra, Vishuddhi, Mooladhara. So that way you have to concentrate on your inner channels of the energy. And the concentration, should remain at each of the chakra for like 1 second or 2 seconds. And then you have to release this mudra and Moola Bandha and slowly exhale and return to the ओरिजिनल पोजीशन. तो इस मुद्रा को हम कैसे करेंगे? एक लेग को आप बेंड करके इस तरह से राइट के से ऊपर भी रख सकते हैं, या फिर आप हिप के नीचे भी रख सकते हैं. वेरिएशंस हैं इसके. और दोनों हाथों से आपको पूरा जो पहले आप अपना पूरा इनहेल कर लीजिए अच्छी तरह से, और एक्सेल करेंगे पूरी तरह से. अपना एब्डोमिनल रीजन कांटेक्ट करेंगे दोनों हाथों से सामने बेंड करते हुए, एक्सेल करते हुए, और अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे. अब इसमें आपको ब्रेथ को होल्ड करना है, ठीक है? जैसे हम जो आसना करते हैं उसमें हम सिर्फ जाते हैं तब ब्रीदिंग को फॉलो करते हैं, और जब हम होल्ड करते हैं तो जनरली हम ब्रीदिंग करते रहते हैं. लेकिन जब हम मुद्रा को प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रेथ को भी होल्ड करते हैं, और अपना जो ध्यान है वो इंटरनली जो है चक्रास पे लेके जाते हैं. जैसे यहाँ पे आप यदि शांभवी मुद्रा लगा सकते हैं, तो शांभवी मुद्रा यदि आप लगाते हैं तो आपको ऊपर की तरफ जो है आईब्रो सेंटर पे देखना है. तो आज्ञा चक्र और आपका जो मूलाधार चक्र, ये जो तीनों चक्र हैं, इस पे विशुद्धि चक्र, मूलाधार चक्र, इन पे आपको अपना कंसंट्रेशन मूव करना है, अपर टू लोअर, लोअर टू अपर. और जब तक आप होल्ड कर सकते हैं करेंगे, और उसके बाद में एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाना है. तो इसी को आप 2-3 बार और भी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स? Because all the mudras, it affects on your concentration, on your nervous system, right? तो शांभवी मुद्रा जैसे यहाँ पे लगाई, या खिचड़ी मुद्रा, मूल बंधा हमने लगाया, एंड कुंभक हम प्रैक्टिस करते हैं इसमें. तो it stimulates your energy circuits, linking all the chakras together, linking the Mooladhara with Agya Chakra. So the whole system is charged with your Prana Shakti, and it intensifies your awareness and induces the spontaneous meditation. It is said meditation is not a practice to do forcefully. It just happens. So all the energy blockages are removed, so everything is smooth and very easy to do. तो इस तरह से ये जो महामुद्रा है इसको कहा गया है, क्योंकि ये जो है आपके पूरे ब्रीदिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर रही है, आपके कंसंट्रेशन को कर रही है, आपके आईज को कर रही है. आप यहाँ शांभवी मुद्रा लगा रहे हैं, खिचड़ी मुद्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मूल बंध लगा रहे हैं, कुंभक कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें जब आप एक साथ करते हैं तो आपका जो एनर्जी सर्किट है, पूरी जो बॉडी का एनर्जी जो पावर हाउस है वो एक्टिवेट हो जाता है. जो मूलाधार से आज्ञा चक्र का जो चैनल है वो एनर्जाइज हो जाता है. आपकी प्राण शक्ति जो है वो बढ़ती है ना. इट लाइक इंक्रीजेज, और यू कैन से इट इंटेंसिफाइज अवेयरनेस. आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो कॉन्शियस लेवल है वो बढ़ता है इससे. तो जैसे कहते हैं ना, मेडिटेशन को किए करते नहीं है, वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें प्यूरिफाई हैं. अचानक से आप कहीं भी कभी भी एकदम अपने को एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिटैच कर सकते हो, इनवर्ड जर्नी आप कर सकते हो. इतना स्मूथ हो जाती है सारी चीजें, दिमाग शांत हो जाता है, आपका शरीर प्यूरिफाई है, दिमाग प्योर है आपका.
तो फिर मेडिटेशन अपने आप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. So this way it is a very good practice you can say. But जो लोगों को हाई बीपी है या हार्ट कंप्लेन है, कुछ आइस का कोई इशू है या कोई भी ऐसी सीवियर डिसीज है, तो उनको ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए. षण्मुखी मुद्रा हम पहले भी कल भी हमने देखा था इसको. षण्मुखी, क्षण का मीन्स 6 जो है वो होता है कि आप जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे आपको डिटैच होना है, क्योंकि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो आपको बाहर की तरफ लेके जाते हैं ना. जो भी चीजें बाहर हो रही हैं उसके लिए अवेयरनेस, उसके लिए जो है ये आपको बताते हैं. आंखें देख के बताती हैं, कान सुन के बताते हैं, है ना. नाक से आप सांस लेते हैं तो कैसी सुगंध है, दुर्गंध है, टेस्ट कैसा है खाने का, या जो भी आप पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. तो ये सब चीजें, बाहरी चीजों से अपने आप को डिटैच करना, इनवर्ड, अंदर की तरफ अंतर्मुखी होना, ये इस मुद्रा का जो है वो मकसद है. एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हल्का सा प्रेशर जो है वो पड़ता है षण्मुखी मुद्रा जब हम लगाते हैं. So you have to sit in any meditative posture, and then you have to your back and neck should be straight, and hold your head and spine straight, and you have to close your eyes and place the hands on your knees first, and then relax your whole body, and then you raise your arms in front of your face, and with elbows pointing sideways. Okay, you should align your arms with your shoulder, and then keep your fingers as it is shown in the figure. The first finger, right, you have to close your ears with your thumb, and then eyes with your index fingers, and nostril with your middle finger, and mouth by placing ring finger above and little finger below the lips. So, and you release the pressure of your, middle finger and open the nostril first, and inhale slowly and deeply using your full yogic breathing, like your abdominal, your chest, all involved in that inhalation. And at the end of inhalation, you have to close your nostril with your middle finger, and then retain the breath inside as long as you feel comfortable. After some time, you have to release the pressure of your middle fingers and slowly exhale. So this is one round, and you have to do it more rounds. Again, it's synchronization of your hand mudra with the breath is required. And spiritually, your Agya Chakra, your Anahat Chakra will get activated because they are used for concentration. So that way, it is, you can practice it for 1 minute, 2 minutes, or 5 minutes, or you can increase it, gradually. So this is the practice, and all the energy, physically and mental energy will be, increased. Your energy and heat from your hands, fingers, they stimulate and relaxes the nerves and muscles of your face. And mentally also, it, increases your awareness. Spiritually, it induces the state of, a sense withdrawal, you can say, pratyahara, which we call. तो इस तरह से षण्मुखी मुद्रा आप देख रहे हैं कि किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठेंगे, और उसके बाद में इनहेल एक्सेल करके पहले पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, और फिर अपने दोनों आर्म्स को ऊपर करना है. आपका जो हाथ है वो शोल्डर के अलाइन होना चाहिए. जो आपके एल्बोज हैं वो पॉइंटिंग होना चाहिए आउटवर्ड, है ना, पैरेलल टू द मैट. और फिर फिंगर्स को हम इस तरह से रखेंगे. जो हमारी पहली उंगली है वो आप आईज पे क्लोज करेंगे. जो मिडिल फिंगर है हमारी, उससे नोज को, और जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है उससे हम माउथ को क्लोज करेंगे, लिप्स के दोनों तरफ रख के.
और थंब से हम ईयर को क्लोज करेंगे और इनहेल करेंगे पूरी अच्छी तरह से, डीप इनहेलेशन, और फिर होल्ड करेंगे ब्रेथ को जब तक आप होल्ड कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे जो है वो रिलीज करेंगे अपनी ब्रेथ को एक्सेल करते हुए। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सेलेशन करना है। तो जो आपके फिंगर्स के टिप्स पे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, उससे जब आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स के कोई पॉइंट्स टच होते हैं, तो उस केस में जो है एक तरह से आपकी एनर्जी फिर से चैनलाइज होती है, और एक तरह से वो कहते हैं ना कि एक करंट सा पास होता है, वो जैसे मृत चीज, सोई हुई चीज जग जाती है, तो उसी तरह से जो है स्टिमुलेशन होता है नर्व्स और मसल्स के बीच में जो आपके फेस के ऊपर है, क्योंकि फेस पे ही जो हेड है रीजन है आपका, इसी में सारे सेंसरी नर्व्स हैं आपके। तो एक तरह से इंटरनली भी अवेयरनेस आती है, और सेंस विड्रॉल जो जिसे हम कहते हैं ना प्रत्याहार, जो है इंद्रियों से विमुखता, वो जो है इस मुद्रा का जो है वो मेन पर्पस है तो करने का। तो इसको भी आप जो है 2-4 बार से लेके 5 से 10 बार जितना भी आप कर दें कर सकते हैं। चलिए, ये 2 मुद्राएं हम कल कर लेंगे, काफी टाइम हो गया है आज। रिकॉर्डिंग भी फिर बहुत सारी हो जाती है, 3 ही लोग बचे हैं।